Very good morning, students. Welcome to Gnan Manji Vidyapit Mova online digital platform. As you know, I am your science teacher Vatsal Trivedi. So guys, आज हम लोग देखने वाले हैं कि अभी हम देख रहे थे अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में केमिस्ट्री के अंदर. लास्ट टाइम हमने देखा था नाइलॉन और रेयन के बारे में, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं उसके रिलेटेड हमने देखा था. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन ऑफ डे 4. सो डे 4 स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखने वाले हैं डे 3 के अंदर जो हमने रेयन नाइलॉन के बारे में देखा था उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. So first is practice question number 2.3 on your supplementary book, page number 3. So Rohit cried some nylon ropes with him when Rohit carried some nylon ropes with him when he went to rock climbing. रॉक क्लाइंबिंग के लिए वो नायलॉन की थ्रेड ले जाता है. व्हाई डू यू थिंक ही सिलेक्टेड नायलॉन रॉप्स instead of the ropes made of cotton or jute? Why he selected nylon ropes? Because nylon is the type of synthetic fiber which is very strong, elastic and lightweight. So that's why the selected of nylon ropes. Cotton or jute ropes would not be strong enough to be used for the rock climbing. Hence, Rohit carried nylon ropes with him. Next question. How are rayon and silk different from each other? ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग क्यों है? Because rayon is obtained by the chemical processing of wood pulp, whereas silk is obtained from the silkworm. Rayon is a synthetic fiber where silk is a natural fiber. Which of the following are raw materials needed to make nylon? कौन से raw material nylon बनाने के लिए यूज होते हैं? सो यहाँ पे आंसर आएगा कोल, कॉटन, एयर, वाटर और वुड. कौन सा आंसर आएगा? सो द करेक्ट आंसर इज कोल, एयर और वाटर. Next question. Synthetic fiber are made using chemicals obtained by refining petroleum and are known as petrochemicals. So answer is the petrochemicals. So as you know that last time हमने देखा था synthetic fibers के चार पेटा टाइप्स होते हैं, रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रेलिक. सो अभी हम देखने वाले हैं पॉलिस्टर और एक्रेलिक. सो किस तरह से उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, किसको हम पॉलिस्टर बोलते हैं, किसको हम एक्रेलिक बोलते हैं. So there are four main types of synthetic fiber as we talked earlier. Today let's learn about the polyester and acrylic. So observe the image number 1 and 2. What is happening into the fabric? Both images आप यहाँ पे देख सकते हो. पहली इमेज है जिसको मैं रब करूंगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, और सेकंड इमेज है जिसको मैं इस तरह से कुछ रब करता हूँ तो कुछ इस तरह से हमको दिखता है. यानी कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? सो लेट्स find out the what is the observation of these pictures. The fabric in image 1 get is crumpled and the fabric of image 2 is not getting crumpled. This is because the fabric in image 2 is polyester fabric, okay, which is compressed a resist. So polyester है वो जल्दी से हम लोग लोकल लैंग्वेज में कहते हैं એની ઉપર ક્રીઝ નથી પડી જાતી જલ્દીથી. સિમ્પલ ફેબ્રિક હોય અને પોલિસ્ટર ફેબ્રિક હોય, એ બેની અંદર એક જ ડિફરન્સ છે કે જે બેઉ ફેબ્રિકને આગળ આપણે ચોળી નાખીએ તો એની ઉપર જે કરચલી હોય यानी कि क्रीज જેવી નથી દેખાતી. सो ये फर्स्ट बेनिफिट है जो आप यहाँ पे देख सकते हो. Polyester is a synthetic fiber made by a joining repeated units of the chemical known as a ester. सो ईस्टर है वो केमिकली ज्वाइन होता है एज अ सीरीज फॉर्म में शोन इन अ बिलोन यूनिट ऑफ द ईस्टर. इस तरह से कुछ ईस्टर यानी कि केमिकल का नाम है एस्टर, इसको हम ईस्टर भी बुला सकते हैं. सो जो एस्टर है ये कुछ इस तरह से दिखता है. तो वो ज्वाइनिंग रिपीटेड यूनिट्स ऑफ द केमिकल
सिंथेटिक पॉलिस्टर है वो एस्टर से बने होते हैं, एक साथ कई सारे एस्टर एक लाइन के अंदर जॉइंट होते हैं, और उसके उसको वो ज्वाइनिंग के मिलाने के बाद जो हमारे पास एज अ रिजल्ट जो फॉर्म मिलता है जिसको हम बोलेंगे पॉलिस्टर. सो नाउ द अनदर यूनिट ऑफ द एस्टर हैज जॉइन द फर्स्ट. जो यहाँ पे देख सकते हो मैंने पहले एक में से दूसरा ज्वाइन करना है, then again multiple such as a unit join together from the long chain like this. Okay, so it is known as a polyester. एस्टर का एक साथ काफी सारे एस्टर एक लिंक कर दे, उसको एक ज्वाइंट कर दे, उसमें से बनता है पॉलिस्टर. सो पॉली मीन्स एस्टर, पॉली एस्टर. अब यहाँ पे देख सकते हो एक एस्टर नहीं काफी सारे एस्टर है, दैट्स वाई पॉलिस्टर. So polyester is a synthetic fiber made by a joining of repeated units of the chemical known as a ester. Hence repeated यानी कि polyester. So hence the name is poly or ester. So that's why polyester. इस तरह से उसका नाम हुआ है. Next. So now types of the polyester. So polythene terephthalate और tyrrolene, ये दो टाइप्स है, टायरेलिन और पॉलीथीन टेरेफ्लेटेड. पीईटी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बुला सकते हैं, टायरेलिन और टेट यानी कि पॉलीथीन टेरेफ्लेटेड. नेक्स्ट. सो यहाँ पे आप पीईटी और थायरेलिन स्पूल्स और फैब्रिक आप देख सकते हो, कहीं सा आप इमेज के अंदर के देखकर ही आप समझ जाओगे. तो ये जो कुछ भी यहाँ पे आप देख रहे हो ये टायरेलिन होता है, ये भी एक पॉलीस्टर है. और जो हमारे डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं, बॉटल्स होते हैं, वो सारे पॉलीथीन में से बने होते हैं, पॉलीथीन टेरेफ्लेट में से. सो लुक एंड अराउंड योर क्लासरूम. यहाँ पे क्लासरूम आप अपना घर समझना, अपने आजू बाजू अपने घर के अंदर, एंड लिस्ट डाउन द 5 आइटम्स दैट यू थिंक कुड बी मेड ऑफ पीईटी यानी कि पॉलीथीन टेरेफ्लेट में से जो बने हुए वो. सो वाटर बॉटल्स, लंच बॉक्स, रबर स्केल्स, पेन पाउच और पेन्स, ये सारी चीज पीईटी में से बने हुए. सो ये भी एक पॉलीथीन है. सो combination of fabrics, polyester are used in a combination with the natural fibers. Tyroline plus cotton, तो उसमें से हम बना सकते हैं टेरिकॉट. ओके, सो कुछ एंड टायरेलिन के साथ हम वूल बना, वूल अगर उसके साथ हम कंबाइन कर दे तो कॉम्बिनेशन एज अ रिजल्ट हमको मिलेगा टेरीवूल. देन पॉलिस्टर और कॉटन को हम बना देंगे तो पॉलीकोट, और पॉलिस्टर और वूल में से पॉली वूल बनता है. यहाँ पे आप देख सकते हो crumple and wrinkle resist, do not absorb much water, easy to wash. Now which fibers are used to make this sweater? कौन से फाइबर का यूज होता है ये स्वेटर बनाने के लिए? सो वूल के साथ कौन सा फाइबर मैच करना पड़ेगा? सो द स्वेटर इज मेड अप ऑफ वूल फाइबर्स, however the wools is quite expensive, so the scientists invested the synthetic fiber to the resemble wool. तो वूल बनाने के लिए ये वूल फाइबर का यूज होता है. नाउ इट इज टाइम टू सॉल्व एक्रेलिक. क्या होता है एक्रेलिक? सो एक्रेलिक इट इज अ सिंथेटिक फाइबर. वी नो दैट a synthetic fiber similar to wool is made of using the chemical such as a fibers is known as acrylic. केमिकल और वूल के साथ कोई केमिकल को मिक्स करके बनाने वाला एक सिंथेटिक फाइबर है जिसको हम बोलेंगे एक्रेलिक. सो एक्रेलिक इज यूज्ड टू मेक ग्लव्स, कैप्स, स्वेटर्स एंड स्कार्फ. स्कार्फ है, ग्लव्स है, स्वेटर्स है, उसको बनाने के लिए एक्रेलिक का यूज किया जाता है. आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप इमेज के थ्रू भी मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ. देन एक्रेलिक फाइबर्स रिसेंबल वूल्स, वो वूल की जगह पर उसको यूज कर सकते हैं. एंड रिसेंबल्स वूल्स और रेजिस्ट ऑफ मॉथ्स. Okay, so acrylic fibers are resist to moths, and moths can be consumed the natural fibers such as a wool. ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ज़्यादातर रिसेंबल्स वूल को बनाने, रिसेंबल्स वूल बनाने के लिए इसका यूज होता है. Now next, check for the understanding. Let's solve the one question. Can polyester and acrylic fibers be worn near fires? So the answer no. Polyester and acrylic fibers are can sorry
No, polyester and acrylic fibers cannot be worn near fires. So this is because the both polyester and nylon fibers are synthetic fiber and they catch the fire very easily. They also melt when they catch fire. सो ये थी हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर और कुछ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन आंसर. सो आप सभी को सारे क्वेश्चन आंसर कंपलसरी अटेंड करके अपनी फेयर बुक के अंदर डायरेक्टली लिख कर बेस्ट हैंड राइटिंग में फोटोग्राफ क्लिक करो और होमवर्क सेंड कर दो. आपका काम खत्म हो गया. लर्न करो, मेमोराइज करो, इजी रहो और मज़े में रहो, फन करो एंड साइंस के साथ एंजॉय करो. सो अभी आपके आपके साथ यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ. अभी आज हमने कौन सा पेज देखा वो भी हम यहाँ पे देख लेने के बाद ये वीडियो यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे. सेम इट इज एज पर द लास्ट सेशन. हमने सप्लीमेंट्री बुक 3% टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर में आज हमने पॉलीस्टर और एक्रेलिक देखा है. उसकी प्रॉपर्टीज, सोर्सेस और यूजेस के बारे में भी हमने आज देख लिया है. उसके साथ हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर भी यहाँ से आप लोग देख सकते हो, वो भी हमने यहाँ पे सॉल्व किए. सो जो भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए सारे क्वेश्चन आंसर आप सभी को अटेम्प्ट करना है. इसी के साथ हमने सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर 4 का भी यूज किया है. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके ऊपर से कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर जो SB पेज 4 पर भी अवेलेबल है, आप ध्यान से वहाँ से भी आप देख लेना. If any types of doubt, please ask me. I will definitely solve your doubt. So अभी के लिए यहाँ तक रखेंगे. अब तक के लिए stay peace, stay home. Thank you very much. Fun with science. Enjoy the science. To be continued on next video. Bye bye. Take care.